All right. So in the last class, we talked about what proteins were. We learned how to draw the peptide bonds, and we talked about vitamins. So very quick review on the vitamins. What are vitamins? Vitamins are organic compounds that help enzymes in the reactions. We have two vitamins that we have to discuss in details. We have vitamin D, which we get from the dairy products, and it transports the calcium ions from the blood. And where does it put it? On the bones, so it could strengthen the bones. Then we talked about the deficiency of vitamin D. If the deficiency of vitamin D is going to be in children, it's going to lead to a condition that leads to the bending of the bones, and that's rickets. Uh, Similarly, if it's going to occur in adults, it's going to lead to osteomalacia or osteoporosis. Walaikum assalam, beta. Which is again easy fracture of bones. Then we talked about vitamin C. Vitamin C we get from citrus fruits and leafy vegetables. Leafy vegetables include cabbages, spinach, right? Uh, what's the function? It helps in the synthesis of collagen. And if there's going to be a deficiency of vitamin C, it's going to lead to a condition that we call as scurvy. Scurvy leads to soft, swollen, blackened, bleeding gums, weakened joints, and easy bruises. Okay, so this is something that we talked about the collagen. Okay, yeah, Muniza. All right, Acha, so we don't need this anymore. So I'm just going to remove this. Acha, now what we're left with, we're left with two things. We're left with ions, we're left with water molecules, or uske ilawa, once we'll be done with that, inshallah, today, we'll be talking about food tests. Take a food test, मजे के. Okay, now, अब अगर हम लोग बात करें mineral ions की, so fiber, when we inshallah go towards the digestion mammals or the nutritional mammals, उसके अंदर हम लोग we'll be talking about the vitamin, the fiber only in that. ठीक है? It's easier to understand in that way. अच्छा, mineral ions, what we'll do is we'll group them up together. ठीक है? तो आसान से mineral ions मुश्किल चीज नहीं है. Now, the very first group of mineral or the pair of mineral ions that we'll talk about are the hydrogen ions and the chloride ions. Right. Both the hydrogen ions and the chloride ions, they have the same purpose एक तरीके से. और इन दोनों का काम क्या है? क्या करेंगे भाई हाइड्रोजन और क्लोराइड आयंस? What will they make? They're going to make hydrochloric acid, where in the stomach. ठीक है, हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. और वो कैसे बनेगा? बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड द क्लोराइड आयंस. ठीक है, वेरी गुड मिनाइल. अच्छा, उसके बाद देन वी हैव अनदर पेयर ऑफ आयंस दैट विल टॉक अबाउट. ये भी दोनों एक साथ काम करते हैं. अच्छा, उससे पहले मुझे एक बात ही बताओ, हमारे पास ये जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी आर नर्व इम्पल्सेस? ये कौन सी एनर्जी होती हैं? व्हाट काइंड ऑफ एन एनर्जी वुड यू एसोसिएट देम विद? जो नर्व इम्पल्सेस होती है वो कैसे हमारे पास नर्व्स में मूव कर रही होती हैं? एज व्हाट? एज इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, एज इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड. ठीक है, केमिकल बिटवीन साइनेप्सेस. और वैसे अगर हम लोग उनकी मूवमेंट के बारे में बात करें, सो देयर दैट्स बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी, राइट? अब मसला क्या आता है कि आई एम एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस. आई एम नॉट मेड अप ऑफ, लेट्स से व्हाट वी कॉल एज मेटल. तो मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे. ठीक है, आई डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो हाउ विल आई बी एबल टू जनरेट एंड ट्रांसमिट दिस इलेक्ट्रिसिटी? मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी हैं. तो मेरे नर्व्स के अंदर ये करंट कैसे जनरेट होगा? While we are on this topic, how would you define a current, मेरे बच्चों? What's a current? करंट क्या होता है? नहीं नहीं, वो तो नर्व सेल्स होते हैं. करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. देखो, करंट इज सिंपली अ फ्लो. करंट इज सिंपली अ फ्लो, राइट?
अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इट्स गोइंग टू बी एन इलेक्ट्रिक करंट. वाटर करंट भी तो होता है, फ्लो ऑफ वाटर, isn't it? So again, current is flow. Is there anything else besides the electrons or the protons that can be charged? कोई और चार्ज सब्सटेंस है मेरी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के अलावा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं ना. आयंस, वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है. सो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, द चार्ज दैट वी हैव, दे बेसिकली आयंस, राइट? तो हमारी बॉडी में आयनिक करंट होता है, एंड एज वन ऑफ यू सेड, आई थिंक दैट्स कौन सी वाली एनर्जी? दैट्स इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी. वेरी गुड. कौन था ये? मिनाइल. वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है. हमारी बॉडी के अंदर ions are going to flow so that a current could be generated in form of these nerve impulses, right? Now, uh, what are the ions that basically flow to generate these charges? हमारे पास दो ions होते हैं. कौन कौन से? Sodium ions और potassium ions. Both of these ions, they do what? They generate, and on my nerve cells transmit the nervous impulses, right? तो मेरे पास सोडियम, स्पेशली द सोडियम आयंस, सोडियम और पोटेशियम आयंस दोनों ये नर्वस इंपल्स को जनरेट भी कर रहे होते हैं और ट्रांसमिट भी कर रहे होते हैं. ठीक है. अच्छा. नाउ इसके बाद आसान आसान आयंस हैं. अब हमारे पास फिफ्थ आयन जो है, वो कौन सा वाला आयन है हमारे पास? कैल्शियम आयन. क्या करता है भाई कैल्शियम आयन? व्हाट डज इट डू ऑन द बोन्स? इट स्ट्रेंथन्स द बोन्स, राइट? राइट. अच्छा, उसके अलावा फिर हमारे पास वी ऑल्सो नीड आयरन आयन. ठीक है. अच्छा, अभी जो आयरन 3+ है, ये क्या करता है? इट मेक्स अ प्रोटीन दैट इज फाउंड इन माय रेड ब्लड सेल्स. अच्छा, एक चीज यहाँ क्लियर कर लो. ब्लड इज अ टिश्यू जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स होंगे. रेड ब्लड सेल्स के अंदर हमारे पास ये वाला प्रोटीन होगा. और वो कौन सा वाला प्रोटीन होगा? इट फॉर्म्स, इट सिंथेसाइजेस व्हाट? कौन सा वाला प्रोटीन है? व्हाट्स द नेम ऑफ द प्रोटीन? वेरी गुड वेरी गुड. It's hemoglobin. All right. अच्छा, और हीमोग्लोबिन क्या कैरी करेगा? ऑक्सीजन. सो प्लीज नो दिस. सो दिस होल थिंग इज योर ब्लड. ब्लड के अंदर एक सेल है. सॉरी, ऑल ऑफ दिस इज ब्लड. ब्लड के अंदर एक सेल है, द रेड ब्लड सेल. रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन है. और हीमोग्लोबिन क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है. ठीक है. तो ये वाली चीज मत भूलिएगा. रेड ब्लड सेल के अंदर ब्लड नहीं होता, हीमोग्लोबिन में ब्लड नहीं होता. प्लीज रिमेंबर दैट. खैर, सो वी डोंट नीड दिस एनी मोर. ओके. अच्छा, अब एक और चीज, यहाँ अगर हम लोग बात करें, अगर हमारे पास आयरन आयंस की डेफिशिएंसी हो जाए, अगर फॉर एग्जांपल इफ आई वुड हैव लैक ऑफ आयरन आयंस इन माय डाइट. देखो बेटे, आयरन आयन से ना हीमोग्लोबिन बनता है. और ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन combines with oxygen and transports it. So hemoglobin is that protein present in our red blood cells that transports oxygen. Do we get this, मेरा बेटा? लाइबा बेटे, बात समझ में आई? वी यूज आयरन आयंस. बिल्कुल बिल्कुल मनीषा. ठीक है. अच्छा, अगर हमारे पास आयरन आयंस की कमी हो गई, इट लीड्स टू अ कंडीशन दैट वी कॉल एज अनीमिया. ठीक है. हाउ डू वी डिफाइन अनीमिया? अनीमिया, बिल्कुल. हाउ डू वी डिफाइन अनीमिया? हम कहते हैं अनीमिया इज अ डिक्रीज्ड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टू द टिश्यूज. के टिश्यूज को एडिक्वेटली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा.
अब now tell me something. If I have enough iron in my diet, can I still get anemia? क्या मेरी बॉडी में फिर भी अनीमिया हो सकता है अगर इफ आई एम टेकिंग इनफ आयरन इन माय डाइट? कैसे मुनीजा? मुनीजा हाउ लाइक इफ आई एम टेकिंग इनफ आयरन? नहीं नहीं, इट्स ओके यू नॉट रॉन्ग मेरा बच्चा, यू नॉट रॉन्ग. No, let's say if I'm consuming all the iron that is needed, adequate amount of iron, can I still get anemia? Okay, let's say what if a person has a lot of iron in the diet or the adequate amount of iron in the diet, but they don't but they lose a lot of blood. For example, कोई इंजरी हो गई और फिर भी और उससे क्या हुआ, बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया. Because of that injury, the person loses a lot of blood. So will the person be able to transport enough oxygen? Nope. Right? It can be genetic as well. Sickle cell anemia ना be a very good. और क्या कंडीशन हो सकती है? तो हमने एक बात करी कि देखो हमारी डाइट के अंदर पहले एनीमिया कैसे हुआ, हमारी बॉडी के अंदर आयरन ही नहीं है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, राइट? आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही. बट अ पर्सन हैज एडिक्वेट आयरन इन द डाइट, बट दे लूज देयर ब्लड. ब्लड लॉस एनीमिया. आयरन तो है लेकिन उसको देयर इज नो ब्लड और द पर्सन हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लड. विल इनफ ऑक्सीजन बी ट्रांसपोर्ट इनटू देयर सेल्स? नो. they'll suffer from anemia. ठीक है? What if a person has enough blood, the person has enough iron ions, but they go to a place where there is very less oxygen? For example, if you've traveled towards any northern regions that are at high altitudes, right? You start getting fatigued very easily. कुछ लोगों को उल्टियां भी आना शुरू हो जाती हैं, कुछ लोगों को चक्कर भी आता है. माउंटेन सिकनेस कहते हैं. वो क्यों होता है? Because at high altitudes there is very low oxygen due to decrease in oxygen, right? So उससे भी anemia हो सकता है. Oxygen नहीं पहुंच पा रहा. You'll start appearing pale for a few days, right? So बात समझाने वाली क्या थी? थैलेसीमिया इज अ डिफरेंट कंडीशन मेरा बेटा. वो एक अलग चीज है. वो एक जेनेटिक कंडीशन है. उसमें द शेप ऑफ द रेड ब्लड सेल इज ऑल्टर्ड. वो वाली चीज है. सो वी कैन ऑल हैव अनीमिया. ठीक है? अनीमिया है क्या मनीजा? जब मेरे पास ऑक्सीजन ही एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, व्हाट इज इट गोइंग टू लीड टू? डू यू गेट दिस मेरा बच्चा? All anemias are temporary. ठीक है? Mostly all anemias are temporary. कोई परमानेंट नहीं होता. They can be corrected एक तरीके से, unless and obviously until unless they're genetic. ठीक है? अच्छा खैर, तो ये बात आयरन की हो गई. Now let's talk about two ions that are needed for the plants. So the first one are magnesium ions and nitrate ions. So we have मैग्नीशियम एंड नाइट्रेट आयंस. ठीक है? अच्छा, तो मैग्नीशियम आयंस हमारे पास क्या करते हैं? मैग्नीशियम आयंस आर नीडेड फॉर किसकी प्रोडक्शन? फॉर क्लोरोफिल प्रोडक्शन. ठीक है? ये क्या करते हैं? ये क्लोरोफिल बनाते हैं. क्लोरोफिल क्या होता है? इट्स अ ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, जो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है. अगर अगर मैग्नीशियम आयंस की डेफिशिएंसी हो गई, what would result in? It would result in yellowing of leaves. जब मेरे पास वो ग्रीन कलर्ड वाला प्रोटीन बनेगा ही नहीं, शुश, जब मेरे पास वो ग्रीन कलर्ड वाला प्रोटीन बनेगा ही नहीं, so what's going to happen? We are not going to get what? We're
not going to get the leaves are not going to appear green. ठीक है. नाइट्रेट आयंस जो होते हैं, दे आर नीडेड, इसको नीचे लिख लेते हैं हम लोग. Nitrate ions are needed to produce what? Amino acids. आप इसको समझिएगा. Uh, where do I get my proteins from? By feeding on other animals, chicken, mutton, fish, chicken, or plants. I can go to the supermarket, I can get my vegetables, I can get the meat, right? When I'm going to break down the proteins, मेरे पास amino acids आएंगे. I can use the very same amino acids to make my own proteins. For example, वही amino acids मेरी skin में गए, मेरे hair बना दिए उन्होंने. Plants, unlike me, cannot go to the supermarket to get food. They can only do what? They can only photosynthesize to produce what? Glucose. अब हमने शुरू में पढ़ा था कि देखो, ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. प्लांट्स को भी तो ग्रो करना है, प्लांट्स को भी तो अपने प्रोटीन चाहिए. वेयर डू द प्लांट्स गेट देयर प्रोटीन्स फ्रॉम? जो उन्होंने ग्लूकोज बनाया होगा इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, वो उसमें क्या ऐड कर देंगे? नाइट्रेट आयंस. So that they can get this nitrogen that is required to make these proteins. All right. Once that is done, the amino acids that they have, they can be used to build up the proteins. All right. So why do they require nitrate ions? To make up the proteins. Protein structural molecules थे. अगर proteins नहीं होंगे तो क्या plants grow कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. So नाइट्रेट आयंस की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, so it would lead to stunted growth of plants. प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाएगी. प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाएगी. ठीक है. डू वी गेट दिस? हाँ जी मुनीजा बेटे बोले. वी हैव टू मेमोराइज दिस अनफॉर्चुनेटली. क्या समझ नहीं आया? देखो बात सुनो, इसको दोबारा देखो. नाइट्रेट आयंस, नाइट्रेट आयंस, they are needed so that they can be joined up with glucose. तो एक बार इसको जल्दी से देख लो. Now very quickly. So we have 8 ions, right? अच्छा, अब इनमें से हमारे पास 2 पेयर हैं, 4 तो बिल्कुल अलग हो जाएंगे. हमें सिर्फ चार चार याद करने हैं. So if somebody is going to ask you कि अच्छा हाइड्रोजन और क्लोराइड आयंस किस लिए इस्तेमाल होते हैं? शुश. हाइड्रोजन और क्लोराइड आयंस हमारे लिए किस लिए इस्तेमाल होता है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कौन सा वाला एसिड? Come on, guys, we know this. Hydrochloric acid. Very good. It's in the name, HCl, right? Hydrogen and chloride ions, right? फिर हमारे पास दोनों, फिर कौन से वाले आयंस का पेयर आ जाता है? सोडियम और पोटेशियम. सोडियम और पोटेशियम आयंस हमारे पास क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू बी नीडेड, दे आर गोइंग टू बी रिक्वायर्ड फॉर द व्हाट? फॉर द जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कौन सी वाली impulses? What the system that's in our brain? Nervous impulses. Very good, very good, very good. Or the nerve impulses, whatever you want to call it. ठीक है. अच्छा, चार तो ये हो गए ना. अब कितने बचे? चार. फ्यू एनिमल्स के लिए दो और इंपॉर्टेंट है. कौन कौन से? कैल्शियम और आयरन. कैल्शियम क्या करेगा? कहाँ जाता है कैल्शियम? ऑन आवर बोन्स. इट स्ट्रेंथेंस आवर बोन्स. आयरन किसके लिए बना? एग्जैक्टली, बोन स्ट्रांग तो मैं स्ट्रांग, राइट? तो खैर, आयरन किधर जाएगा? आयरन इज गोइंग टू बी यूज्ड टू बिल्ड अप व्हाट? कौन सा वाला प्रोटीन? हीमोग्लोबिन. मेक सेंस? याद हो गया? अच्छा, अगर हमारे पास आयरन आयंस की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा बच्चे लोग? कौन सी कंडीशन होगी?
एनीमिया, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब बचे हमारे पास दो आयंस, कौन कौन से? मैग्नीशियम और नाइट्रेट आयंस। नाइट्रोजन कौन से वाले उसमें होता है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में होता है? वेरी गुड, प्रोटीन में। तो प्लांट्स को प्रोटीन्स बनाने के लिए कौन से वाले आयन सही होंगे? जिसके पास नाइट्रोजन होगा, नाइट्रेट आयंस, ठीक है। अगर प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे प्लांट को या नाइट्रेट आयंस नहीं मिलेंगे तो प्लांट क्या होगा? इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग टॉल इट वुड बी ग्रोइंग शॉर्ट, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। स्टंटेड ग्रोथ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैग्नीशियम किसके लिए चाहिए? अब क्या बचा? आखिरी चीज एक बच गई। क्लोरोफिल कौन से कलर का होता है? ग्रीन। अगर मैग्नीशियम आयंस नहीं होंगे तो ये क्लोरोफिल लीव्स के अंदर कौन से वाले कलर का हो जाएगा? येलो। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, क्या मुश्किल है इसमें? दिस इट, दैट्स इट, ठीक है। बस ये बात याद रखनी है। ओके, नाउ दैट वी नो दिस, नाउ दैट वी नो दिस, अब one last thing before we move on with nutrition mammals, let's talk about food tests, ठीक है। अच्छा, so we'll be talking we'll be talking about food tests for what? Carbohydrates, lipids, proteins, and those students who are appearing for IGCSE, they'll also be required to memorize vitamin C, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले girls bus, right now it's not looking like girl boss time, it's looking like girl bus time. फिर सबसे पहले let's talk about the food test for carbohydrates, ठीक है। So yeah, Laiba, that's why girls bus. खैर, now let's talk about carbohydrates, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बता दो, how many carbohydrates do you guys know by name? Give me a number, give me a number. How many carbohydrates do you guys by name? 6. Okay, Laiba knows 6. Is there anyone else who knows more? Some knows 5. हाँ जी, I taught 9 by the way. I taught 9, right? So again 9. अच्छा, how many monosaccharides do we know? कौन कौन सी? 3 मोनोसेक्राइड्स है ना, कौन कौन सी? GFG को क्या क्या था? ग्लूकोज, गुड। F से क्या आता है? फ्रक्टोज, वेरी गुड। अल्लाह मुनीज़, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फैट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। God. So anyone who's going to watch this recording is going to be entertained. Khair. So glucose, fructose, and then we have what? Glucose, fructose and galactose. Very good, very good. तो ये तीन हमारे पास क्या है? मोनोसेक्राइड्स है। ये तीन हमारे पास क्या है? मोनोसेक्राइड्स है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली तीन मोनोसेक्राइड्स हो गए, उसके बाद हम लोगों ने तीन डाइसेक्राइड्स पढ़ी थी, राइट? तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज गोइंग टू गिव मी व्हाट? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज गोइंग टू गिव मी माल्टोस, ठीक है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इज गोइंग टू गिव मी, वेरी गुड, सुक्रोज। एंड ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज इज गोइंग टू गिव मी लैक्टोज। कितनी हो गई है? 6, राइट? अच्छा, हाउ मेनी पॉलीसेक्राइड्स डू वी नो? 3। कौन कौन सी? प्लांट्स में एनर्जी स्टोर क्या होता है? स्टार्च। एनिमल्स में कौन सा जेन होता है? ग्लाइकोजन, वेरी गुड वेरी गुड। और प्लांट सेल वॉल्स किससे बनी हुई है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड नुकसान। कितनी हो गई? 9 हो गई। 3 मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज। 3 डाइसेक्राइड, माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज। और 3 क्या हो जाएंगे हमारे पास? पॉलीसेक्राइड्स। कौन कौन सी? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। इजी, गुड गुड, एग्जैक्टली। अच्छा,
अब हमारे पास, अब हम इन 9 में से, सो वी हैव 9, राइट? सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर स्टार्च. सो द वेरी फर्स्ट फूड टेस्ट दैट विल बी डूइंग विल बी द टेस्ट फॉर स्टार्च. अच्छा, अब हम इसको कैसे वो करेंगे? आई नो पॉलीसाइकिल बट फॉर कंडक्टिंग, इट्स ओके साम, इट्स ओके, बस अब याद हो गया ना इंशाल्लाह. ओके. अच्छा देखो, अब सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द reagent. अच्छा बच्चों, reagent क्या होता है? आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड earlier before. It's a chemical which we can use to identify other chemicals. ठीक है, सबसे पहले इसका रीजन क्या है. दूसरी बात हम लोग ये करेंगे कि इसका मेथड क्या है, हाउ डू वी टेस्ट फॉर स्टार्च. एंड द थर्ड थिंग दैट विल टॉक अबाउट इज पॉजिटिव रिजल्ट, कि अगर स्टार्च प्रेजेंट हुआ तो कलर क्या हो. ठीक है. अच्छा, so what reagent do we use for starch? We use an iodine solution. आयोडीन सोल्यूशन का ओरिजिनल कलर क्या होता है? रेड ब्राउन. ठीक है. ओके गाइस, फोकस नाउ. इसका मेथड क्या होता है, हाउ डू वी टेस्ट फॉर स्टार्च? हम कहते हैं इन sample containing starch, add a few drops of iodine solution. कि भाई किस, फॉर एग्जांपल मेरे पास टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर स्टार्च है, मैं उसमें थोड़े से आयोडीन के ड्रॉप्स, आयोडीन सोल्यूशन के ड्रॉप्स डाल दूंगा. अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा, सो व्हाट कलर इस आयोडीन सोल्यूशन इज गोइंग टू चेंज इनटू? हम कहेंगे इसका पॉजिटिव रिजल्ट क्या आता है? अ ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, राइट? आयोडीन जो होता है वो अपना कलर रेड ब्राउन से क्या कर लेगा? इट्स गोइंग टू टर्न ब्लू ब्लैक. मेक सेंस? वेरी गुड, वेरी गुड. सम reagent is a chemical that we use to test for other chemicals. मैं इस आयोडीन सॉल्यूशन से किसकी प्रेजेंस को टेस्ट कर रहा हूँ मनीषा बेटे? आयोडीन इज अ reagent. इससे मैं किसकी प्रेजेंस को टेस्ट कर रहा हूँ? स्टार्च. वेरी गुड. तो आयोडीन से मैं दूसरा, वेरी गुड आइजा, आयोडीन से मैं दूसरा केमिकल टेस्ट कर रहा हूँ ना, तो आयोडीन मेरे पास क्या हो गया? इट्स अ reagent, राइट? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस, यस मुनीजा. अच्छा, तो अगर अगर एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, तो सेम कलर रहेगा. इसका सेम कलर क्या था बेटा? आयोडीन का कलर क्या था? रेड ब्राउन. अगर हमारे पास स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारे पास आयोडीन कौन कैसा वाला कलर देगा? वो नेगेटिव रिजल्ट देगा, विच इज गोइंग टू बी रेड ब्राउन. कि भाई मैंने इस, व्हेन आई मिक्स विद द सॉल्यूशन, a blue black color was not there, that means starch is absent, starch is not present. लाइबा बात समझ में आई? एग्जैक्टली. देखो, अच्छा लाइबा टेल मी, हम लोग कर क्या रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग? वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि हमारे पास किसी फूड सब्सटेंस के अंदर इज स्टार्च प्रेजेंट और इफ इट्स नॉट प्रेजेंट, राइट? डू वी अंडरस्टैंड दिस मच बेटे? अगर मुझे मालूम करना है कि अच्छा ये जो सैंपल है इसमें स्टार्च होता है या नहीं होता है, उसको मैं टेस्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल करूंगा? आयोडीन सोल्यूशन. ठीक है, पूरा बोलना, सिर्फ आयोडीन मत लिखिएगा. आयोडीन सोल्यूशन. अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा तो आयोडीन सोल्यूशन कैसा रिजल्ट देगा? पॉजिटिव रिजल्ट, विच इज इट विल टर्न फ्रॉम रेड ब्राउन टू व्हाट? ब्लू ब्लैक. अगर स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा, आयोडीन इज गोइंग टू रिमेन व्हाट? रेड ब्राउन, एंड इट्स गोइंग टू गिव मी अ कैसा वाला रिजल्ट? नेगेटिव रिजल्ट. डू वी अंडरस्टैंड दिस नाउ? ओके, यू वेलकम बेटे. अच्छा,
तो आउट ऑफ द 9 कार्बोहाइड्रेट्स दैट वी नो, हम लोगों ने एक निकाल दी। कौन सी वाली निकाल दी? स्टार्च। कितनी बची हमारे पास? 8, राइट? अब उन 8 जो वट एवर द carbohydrates that we're left with, we're going to divide them into 2 categories. Now, the next test that we have is the test for reducing sugars. Is the test for what? Reducing sugars. Acha. No, reducing sugars. What are reducing sugars? इसको देखो, हमने कहा all monosaccharides. तो कितनी हो गई हमारे पास बेटे? If all monosaccharides are reducing sugar, then how many monosaccharides do we have? 3, right? And all डाइसैकेराइड्स अब कितनी हो गई? वेरी गुड, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज 6 हो गई। ठीक है, डाइसैकेराइड्स कौन कौन सी थी? लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। ठीक है, तो हमने कहा रिड्यूसिंग शुगर्स आर ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड ऑल डाइसैकेराइड्स except for sucrose. So reducing sugars are all mono and all disaccharides except what? So if उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि does not react with the reagent, ठीक है, इसलिए खैर। So all the 5 glucose, fructose, galactose plus lactose and maltose, all of them are reducing sugars. तो सुक्रोज क्या हो गया? सुक्रोज would be a कैसी वाली sugar? It would be a non-reducing sugar. Sucrose is going to be a कैसी वाली sugar, sorry, non-reducing sugar. ठीक है, अच्छा अब इसको 1 मिनट देखो। अब सबसे पहले what is the reagent and what is the method? The reagent that we use is what reagent? It's the Benedict's reagent. All right, Benedict's, very good. नहीं, वो नहीं है। They basically reduce copper sulfate. Benedict's is copper sulfate में some, वो एक अलग चीज है। Let's not go to the details. Benedict's क्या है लाइबा? It's a reagent that we use to test what? That we use to test what? कौन सी वाली sugars? Reducing sugars. Do we get it? Okay. अच्छा, इसका मेथड क्या होता है? हमने कहा in a test tube containing a known volume of what? Of reducing sugars. For example, हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब में कितनी रिड्यूसिंग शुगर डाली? 2 सेंटीमीटर क्यूब। इतना सा होता है 2 सेंटीमीटर क्यूब, लाइक हाफ ऑफ माई पिंकी तकरीबन। ठीक है, इतना। तो मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, मैं इसको बना के भी दिखाता जाता हूँ। मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर मैंने 2 cm क्यूब रिड्यूसिंग शुगर डाल दी। ठीक है, सो इन अ टेस्ट ट्यूब containing known volume of reducing sugar, add the same volume of what? Of the Benedict's reagent, Benedict solution। ठीक है, जितनी मेरे पास रिड्यूसिंग शुगर थी, कितनी थी? 2 cm क्यूब। मैंने उतना ही 2 cm क्यूब क्या डाल दिया उसके अंदर? Benedict's reagent, right? So I take a test tube, using a syringe, I add 2 centimeter cube of reducing sugar,
and I would also add 2 centimeter cube of what? Benedict's reagent. ठीक है, अगेन ये मुझे कोई रिजल्ट नहीं देगा, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम कहते हैं and heat in what? Water bath for 2 to 5 minutes at 80 to 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो मैंने क्या करा, अब देखो मैंने क्या करा, मैंने इस टेस्ट ट्यूब को एक बीकर में डाला और उस बीकर के अंदर मैंने क्या भर दिया? वाटर भर दिया। मैंने टेस्ट ट्यूब को डायरेक्टली हीट नहीं करा, मैंने टेस्ट ट्यूब को डायरेक्टली हीट नहीं करा। ठीक है, मैंने उसको वाटर बाथ में डाला। वाटर बाथ क्या होता है? बीकर में पानी भर के अब उसको क्या करें, उसको फिर बंसन बर्नर से हीट कर दें। राइट, ठीक है, इनिशियल कलर इज ब्लू, ये रहा बच्चों। अगर हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट होगी, the Benedict's ultimately would change its blue color to what color? To red. ठीक है, ऑल राइट। अच्छा अब इसको देखो, अच्छा हम लोग टेस्ट ट्यूब को डायरेक्टली हीट क्यों नहीं कर रहे मेरे बच्चों, इसको भी देख लो। अगर मैं इस टेस्ट ट्यूब को डायरेक्टली हीट करूंगा ना, तो सिर्फ उसकी बेस को हीट पहुंचेगी, पूरा का पूरा सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, उसका जो सिर्फ बेस को हीट लगेगी, पूरी सोल्यूशन को नहीं लगेगी। मैं उसको जब वाटर बाथ में हीट करूंगा, तो वाटर तो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट? तो वाटर पूरी टेस्ट ट्यूब को इक्वली हीट पहुंचाएगा, राइट? बेनेडिक्ट का जो कलर होता है वो कैसा होता है? वो ब्लू होता है। तो अगर मैं क्लियर ट्रांसपेरेंट रिड्यूसिंग शुगर में डालूंगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा उस सोल्यूशन का? ब्लू हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब इसका पॉजिटिव रिजल्ट क्या आता है? If the reducing sugars are present, then the Benedict changes its color from blue to what? Green to what? Orange. Sorry, yellow. First yellow होगा, फिर आता है हमारे पास ऑरेंज, और फाइनली हमारे पास कैसा कलर आ जाता है? ब्रिक रेड। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है? व्हाट आर द कलर्स ऑफ द रेनबो? रेनबो के कलर्स क्या होता है? उसका न्यूमोनिक क्या होता है? विप ग्योर, राइट? रोइक विप कर लो, हम लोग उल्टा कर लेते हैं, विप ग्योर कर लेते हैं। ठीक है, विप ग्योर में से अगर हम लोग वायलेट और इंडिगो हटा दें, तो बेनेडिक्ट्स वाली स्कीम बन जाती है, ब्लू टू ग्रीन टू येलो टू ऑरेंज टू रेड। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, इसका आगे हम लिखेंगे डिपेंडिंग ऑन concentration of what? Reducing sugar। ठीक है, इसको समझो, इसको समझो। बेनेडिक्ट्स जरूरी नहीं है कि ब्लू से रेड ही जाए, इट कुड गो टू ग्रीन, इट कुड गो टू येलो, इट कुड गो टू ऑरेंज, इट कुड गो टू रेड। ठीक है, बेनेडिक्ट्स टेस्ट इज कॉल्ड एज अ सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। मैं बता रहा हूं, इसको समझो, इसको समझो, इसको समझो। इट्स वेरी इजी, इट्स विप ग्योर, विप ग्योर याद रख लो, हो जाएंगे। खैर देखो, बेनेडिक्ट टेस्ट दो चीजें कर रहा है। एक तो मुझे बता रहा है कि ओके यू नो हाउ मच और इफ द रिड्यूसिंग शुगर इज इवन प्रेजेंट और नॉट। दूसरी चीज, ये आई शो यू वीडियो इन द नेक्स्ट क्लास, डोंट वरी। दूसरी चीज से मुझे क्या बता रहा है?
ये मुझे बता रहा है कि what is the concentration of reducing sugar, right? Let me give an example. Let me give an example. अगर मेरे पास किसी भी सोल्यूशन के अंदर about 20%, 25% रिड्यूसिंग शुगर होगी, तो बेनेडिक्ट का कलर ब्लू से कहां तक जाएगा? सिर्फ ग्रीन तक. इट्स गोइंग टू बी मिक्सचर ऑफ ब्लू ग्रीन, या कंप्लीटली ग्रीन हो जाएगा. अगर रिड्यूसिंग शुगर की कंसेंट्रेशन और ज्यादा हुई, फॉर एग्जाम्पल 50% तक हुई, तो वो कलर उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू से कितना हो जाएगा? येलो, राइट? If the concentration of reducing sugar is about 75%, तो उसका कलर क्या हो जाएगा? येलो. और अगर मेरे पास 100%, if I would have a concentrated solution of reducing sugar, right, then the color that we're going to get is going to be what? It's going to be red. Do we get it? अच्छा, अब इसको देखो, अब मुझे बताओ, मैंने एक बेनेडिक्ट टेस्ट करवाया और मेरे पास जो कलर चेंज आया ना, द कलर चेंज दैट आई गॉट was a mixture of yellow orange, was a mixture of yellow orange, but there was more yellow, but it was more yellow than orange. येलो ऑरेंज का मिक्सचर आ रहा था, लेकिन उसमें येलो की इंटेंसिटी ज्यादा थी. तो कैन यू प्रिडिक्ट द कंसेंट्रेशन ऑफ, सॉरी, कैन यू प्रिडिक्ट द कंसेंट्रेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर? वेरी गुड, वेरी गुड. देखो, येलो ऑरेंज कलर आ रहा था ना, तो द रेंज शुड बी 50, between 50 and 75, बट इट वाज मोर क्लोजर, इट वाज मोर येलो देन ऑरेंज. तो मैंने गैस कर लिया कि अच्छा, अंदाजा लगा लिया कि 55% होगा, 60% होगा एट द मैक्सिमम. मेक सेंस, राइट? अच्छा, बेनेडिक्ट्स मुझे कभी भी एग्जैक्ट कलर नहीं बता, एग्जैक्ट कंसंट्रेशन नहीं बता रहा. कैसे इसके अंदर एग्जैक्ट कंसंट्रेशन ये होगी, ठीक है, हाँ, अराउंड 60 मिनाइल कह सकते हैं. अच्छा, मुझे एक और बताओ, हैव यू एवर हर्ड अबाउट ग्लूकोमीटर? ग्लूकोमीटर पता है किसी को क्या होता है? डज एनीवन नो व्हाट्स अ ग्लूकोमीटर? नो. ओके, ओके, आई विल शो यू गाइस समथिंग. हैव यू एवर सीन दिस डिवाइस? वी हैव, राइट? People who are diabetic, they use this, exactly, sugar testing device. ठीक है, very good. This is the glucometer. अच्छा, okay. अच्छा, ये जो ग्लूकोमीटर है ना, whenever I'm going to test my blood glucose levels with it, ये मुझे exactly बताएगा कि अच्छा हारिस, तुम्हारी blood glucose levels इतनी है. ठीक है, ये मुझे exact values बता रहा है. ये मुझे क्या बता रहा है? क्वांटिटेटिव वैल्यूज बता रहे, समथिंग दैट आई कैन काउंट एग्जैक्ट वैल्यूज. इस तरीके से बेनेडिक्ट टेस्ट भी मुझे बता रहा है कि अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है. मुझे एग्जैक्ट चेंजेस नहीं, एग्जैक्ट कंसंट्रेशन नहीं बता रहा, लेकिन मुझे अंदाजा बता रहे हैं कैसे इसके बीच में हो सकती है. एनीथिंग दैट डज नॉट टेल मी एन एग्जैक्ट वैल्यू but gives me, let's say, an estimate, is called as what? Semi-quantitative. ठीक है? So we'll stop here today. I hope you guys have a good day.